Hello friends, welcome to Biology Talk World tutorial by Himanshi. Today we are going to discuss about the another section of this chapter, that is morphology of flowering plant, and the topic that we will be dealing today is about leaves. In this section we will see what actually leaf is, what are the different parts of leaf, what are its functions, what are its modification, how we can classify leaves on the basis of different categories. Each and everything we are going to deal in this chapter in brief. So let's begin. Now the first question is how we will define leaf. Leaf होती क्या है, ठीक है? In a simpler way, we can say leaf are the lateral flattened structure जो आपके stem पे हो लगती हैं and they are green in color. Basically, they are responsible for photosynthesis. So we can define leaf as lateral flattened structures present on the stem responsible for photosynthesis. Now, where does these leaf actually arises? स्टेम में एक पार्ट होता है, यू नो दैट स्टेम कंटेन मैनी नोड्स एंड इंटरनोड्स, ठीक है? दिस रेड कलर मार्जिन्स आर नोन एज नोड्स एंड द एरिया बिटवीन टू नोड इज नोन एज इंटरनोड एंड दीज एरियाज आर नोन एज इंटरनोड. तो आपकी जो लीव्स हैं या कोई भी स्टेम है, दे बेसिकली अराइजेस फ्रॉम द नोड रीजन ऑफ द स्टेम. तो वी कैन से लीफ अराइज फ्रॉम द नोड. एंड नाउ जो एक्सिल है लीफ का, उसमें देर आर सर्टेन बर्ड्स present and these birds later on may form new branches. And you know that जो leaf है, they basically originate from the shoot apical meristem, and all the leaves are arranged in acropetal order. Acropetal order mean the older leaves are present at the bottom part of the stem, and the new leaves or young leaves, they will be produced at the tip. Main function of the leaf, as we all know, that it helps us in carrying out the process of photosynthesis by which plant used to make the food. But remember, there are various different kinds of leaves. You can find them in different shades, like especially in case of showy plant, you may see that leaves are yellow or some maroon in color, or they may be found in some another shades. But you know that major dominant pigment which is available in the nature is chlorophyll. That is why most of the leaf appear green to us. Although the different shade that we say, that may be due to the presence of different pigment which is present in those specific plant in dominancy. Right. Now, if we look at the basic structure of the leaf, as you can see before you, यहाँ पे there is a stem, ठीक है? Stem का वो node वाला area जहाँ से leaf arise होगा, that is known as leaf base. And यहाँ पे you can see in the diagram there is a blue stalk जो कि leaf को connect कर रहा है stem से. That stalk is known as petiole. And the whole broad part, this flattened part that you see, ठीक है, that is known as leaf, जिसको actual में leaf कहा जाता है. This structures, this is known as lamina or leaf blade, you can say. In this lamina you can see various branching structures जिसको आप क्या बोलते हो, veins, ठीक है? Like ये center की vein होगी and these are veinlets. They are highly rich in vascular tissue or conducting tissues of plant like xylem and phloem. Now see at the base जहाँ पे petiole connect हो रहा है leaf base से, there is small green leafy structure that arises, and these leafy structures that arises at the base of the petiole, these are known as stipule. Now see, the scientific term for lamina is epipodium and for the leaf base it is hypopodium. Now see, in some plant you may see leaf have petiole, ठीक है? एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे एक्चुअल में आपका जो लीफ का ब्लेड है वो अटैच होता है थ्रू द स्टेम. ऐसे प्लांट जिसमें आपको petiole देखने को मिलेगा प्रोमिनेंटली, दैट इज नोन एज petiolate लीफ. ओके और ऐसा लीफ जिसमें आपको कोई petiole नहीं देखने को मिलेगा और जो लीफ का जो ब्लेड है वो डायरेक्टली स्टेम के साथ अटैच है, दैट इज नोन एज sessile लीफ. Hence sessile leaf has no petiole. Okay, now one more thing is that ऐसी लीफ जिसमें आपको स्टिप्यूज और ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर एट द बेस ऑफ द पिटियोल देखने को मिलेगा, उस टाइप की लीफ को बोलते हैं स्टिपुलेटेड लीफ. और जिसमें आपको दे विल बी नो स्टिप्यूल, दैट इज नोन एज एक्सटिपुलेटेड लीफ. नाउ देर इज वन मोर टाइप ऑफ अ लीफ, दैट इज क्लैस्पिंग बेस लीव. ये आपकी ऐसी लीव होती है जिसका जो बेस है वो ब्रॉड होता है और ये आपके स्टेम को सराउंड करके रखता है. हाफ ऑफ द पोर्शन ऑफ द स्टेम इज सराउंडेड बाय दैट ब्रॉड बेस ऑफ सच काइंड ऑफ लीव.
Now let us see what are the different functions of leaf. You are very well aware that it helps us in photosynthesis, conduction of water and minerals, storage of food में भी आपकी leaf help करती है. That is why most of the leaf we consume as a food. Now, in certain leaves, you may see that they have modified themselves into thorns or spines. ठीक है, तो ये सारी चीजें क्यों हो रही है? ताकि वो लीफ को प्रोटेक्ट कर सके from the grazing animals. In case of aquatic plants, you may see that leaves are very light and they have a tendency of floating over the water. That power is known as buoyancy. ये क्यों होता है? क्योंकि वहां पे leaves के जो cells है वो high amount में air and chyma उनमें होता है. Air is present, due to which वो उनको buoyancy provide कर रही होती है. Then we know that leaf has small pores known as stomata जो उनको transpiration में help कर रही होती है और exchange of different gases में help कर रही होती है. There are certain leaves which help us in reproduction by bud forming. So these are some of the important functions that is carried out by leaf. Now let us try to understand a new term here, that is phyllotaxy. आपके स्टेम और ब्रांच में लीफ किस पैटर्न में अरेंज है उसको बोलते हो phyllotaxy. Hence phyllotaxy is defined as the arrangement or a pattern of a leaf present on the stem. स्टेम में किस पैटर्न और किस अरेंजमेंट में लीफ आपकी प्रेजेंट है उसको बोल रहे हो phyllotaxy. नाउ प्लांट में जो लीफ है उसकी फाइलोटैक्सी को हम 3 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. वन इज नोन एज ऑल्टरनेट, सेकंड इज अपोजिट एंड थर्ड इज नोन एज रॉल्ड. ऑल्टरनेट में क्या होगा? स्टेम की एक नोड पर एक ही लीव अराइज होगी और ये लीव्स आपके ऑल्टरनेट फॉर्म में चलेगी. एक लेफ्ट साइड अगर आई है तो दूसरी बार राइट आएगी, देन लेफ्ट देन राइट. एज यू कैन सी इन द डायग्राम नंबर 1 दैट आई एम स्पेसिफाइंग, देयर इज वन नोड, तो यहाँ पे एक लीफ आई है. फिर सेकेंड नोड से उसकी अपोजिट साइड में लीफ आई है, थर्ड नोड से देन अगेन अपोजिट साइड, एंड फोर्थ नोड में देन अगेन अपोजिट. मीन ऑल्टरनेटिवली चल रहा है, लेफ्ट राइट. ठीक है, दिस टाइप ऑफ लीव यू कैन इजिली ऑब्जर्व इन केस ऑफ हिबिस्कस, टोबैको प्लांट, पीपल, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर. नाउ सेकेंड टाइप ऑफ लीफ इज दैट अपोजिट, जहां पर एक नोड से अपोजिट डायरेक्शन में दो लीव्स अराइज होंगी. ठीक है, तो टू लीव्स आर अराइजिंग फ्रॉम द सेम नोड बट इन द अपोजिट डायरेक्शन, that is known as opposite phyllotaxy. This you can easily see in guava, jamun, calotropis, tulsi. Okay, now this opposite leaves are now again classified into two parts, that is superposed and desiccate. What is the difference between superpose and desiccate? Now look at the diagram number 2. यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? एक नोड से अपोजिट डायरेक्शन में दो लीफ अराइज हो रही है और इनका प्लेन सेम है. ठीक है, एक के ऊपर एक, फिर ऐसी जो थर्ड लीव लगेगी वो भी पहले वाले के जस्ट सेम प्लेन में होगी, तो ऐसी लीफ को बोल रहे हैं सुपरपोज. दे आर सुपर इम्पोजिंग ईच अदर. वेयर एज डेसिकेट अपोजिट वाले में क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल एक नोड से आपकी, लेट अस कंसिडर यहाँ पे लीव निकल रही है, तो जब सेकेंड वाला नोड है वहां पे पहले वाले लीव के कंपैरिजन राइट एंगल में लीव निकली. मतलब एक हमारे, अगर हम इसे ऐसे एज्यूम करें कि एक हमारी तरफ को आ रही है और एक टुवर्ड द बोर्ड के पीछे जा रही है. ठीक है, तो यहाँ पर डेसिकेट अपोजिट में जो लीव है उनका प्लेन चेंज हो जाता है. राइट, पेयर ऑफ लीव जो अराइज हो रही है एक नोड पे वो राइट एंगल होती है अपने जो दूसरा पेयर ऑफ लीव उसके ऊपर ही नीचे प्रेजेंट है. ठीक है, तो बेसिकली आपको डेसिकेट तुलसी में देखने को मिल जाएगा. इफ यू ऑब्जर्व द प्लांट यू विल बी एबल टू डिस्टिंग्विश इन अ बेटर वे. राइट, तो इज इट क्लियर? अपोजिट में क्या होगा? दो पेयर ऑफ लीव हमेशा सेम प्लेन में रहेंगी, मतलब जैसा नीचे वाली लीफ है वैसे ही ऊपर वाली लीफ अरेंज होंगे. एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, ये आपके लेफ्ट एंड राइट में है तो इसके ऊपर वाली भी लेफ्ट एंड राइट में है. ऊपर वाली जितनी भी लीव्स लगी होंगी स्टेम में वो एक ही प्लेन में होंगी. वेयरएज इन केस ऑफ डेसिकेट, अगर एक लीफ का प्लेन अगर लेफ्ट एंड राइट है तो दूसरे वाले का फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड होगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस बोर्ड. ठीक है, नाउ द थर्ड कैटेगरी इज रॉल्ड लीफ. रॉल्ड लीफ में क्या हो रहा है? एक नोड से आपकी मल्टीपल लीव अराइज हो रही है. एज यू कैन सी इन द डायग्राम नंबर 3 हियर, ये आपका एक नोड है, इसमें से आपके 1 2 3 4 5 लीव्स अराइज हो रही है. ठीक है, अगर दो से ज्यादा लीव एक ही नोड से अराइज हो रही है तो दैट इज नोन एज रॉल्ड कंडीशन. Like where you can see this condition, Estonia, Gallium, Nerium में you can see such kind of phyllotaxy. Now let us try to understand one more new term, that is venation. Venation का मतलब basically होता है कि आपकी जो veins हैं, जो लीफ के ऊपर जो वेन्स लगी है वो किस पैटर्न में अरेंज है आपके लीफ के ऊपर, दैट इज नोन एज वेनेशन.
वेनेशन मीन लाइक यू नो दैट दिस इज अ लीफ, इसके बीच में क्या जाता है, मिडरिप जाता है, और ये सारे क्या है आपके वेन एंड वेनलेट्स है. तो अरेंजमेंट ऑफ दीज वेन्स एंड वेनलेट्स ओवर द लीफ दैट इज नोन एज वेनेशन. Hence we can write here venation is arrangement of veins and veinlet over the leaf. Over the leaf. Right. Now see venation as we have seen कि किस तरीके से वेन एंड वेनलेट एक लीफ के ऊपर अरेंज है, उस पैटर्न को हम वेनेशन बोलते हैं. वेनेशन को we can classify into two categories. One is known as parallel venation and second is known as reticulate venation. अगर वेन्स लीफ के ऊपर पैरेलल पैटर्न में अरेंज है तो उसको बोलेंगे पैरेलल वेनेशन. अगर वेन एंड वेनलेट लीफ के ऊपर एक नेटवर्क फॉर्म में अरेंज है तो उसको बोलेंगे हम रेटिकुलेट वेनेशन. यहाँ पे वेन्स एंड वेनलेट का अरेंजमेंट क्या होगा, वो एक रैंडम नेटवर्क में होगा. यहाँ पे क्या होगा, सारी की सारी पैरेलल होंगी. राइट. पैरेलल को अगेन वी क्लासिफाइड इनटू पिन्नेट एंड पाल्मेट. Now parallel venation is further classified into pinnate and palmate. Pinnate में क्या होता है, सेंटर में as you can see in case of banana leaf, सेंटर में एक मेन वेन जाएगी as you can see in the diagram, और जो बाकी वेनलेट्स हैं वो इस मेन प्रिंसिपल वेन के पैरेलल होगी like this. ठीक है, all will be parallel like this to the main principal axis. So this type of leaf is known as pinnate parallel venation, and this you can see in case of banana. Now palmate leaves is again classified into two, that is convergent and divergent. palmate में क्या होगा, जो पिटियोल है, ठीक है, जैसे लीफ का ये जो पिटियोल है, पिटियोल से आपकी पाल्मेट में क्या होगा, जैसे जो लीफ का पिटियोल है, लीफ के पिटियोल के टिप से आपकी यहाँ पे प्रिंसिपल वेन्स अराइज होंगी और ये वेन्स आपस में पैरेलल होंगी. जैसे बनाना के केस में तो क्या हो रहा था, एक ही प्रिंसिपल वेन थी और उस प्रिंसिपल वेन के परपेंडिकुलरली बहुत सारी पैरेलल वेनलेट्स निकल रही थी. पाल्मेट में क्या होगा, पिटियोल का जो टिप है, पिटियोल के टिप से बहुत सारी पैरेलल वेन्स निकलेंगी और इनको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. वन इज नोन एज कन्वर्जेंट एंड सेकंड इज डाइवर्जेंट. एज यू कैन सी इन फर्स्ट केस, यहाँ पे इस बेस से सारी लीव्स की वेन्स निकल रही हैं एंड दे ऑल आर कन्वर्जिंग एट द टिप ऑफ दिस लीव. ठीक है, ये सारी की सारी कहाँ पे जाके कन्वर्ज हो रही है, टिप पे, बट सारी की सारी है कैसी, पैरेलल. वेयरएज इन केस ऑफ डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट में आपको क्या देखने को मिलेगा, ये जो पिटियोल है, पिटियोल का जो टिप है, यहाँ से बहुत सारी पैरेलल वेन्स निकल रही है एंड दे आर डाइवर्जिंग फ्रॉम ईच अदर. ठीक है, तो इस टाइप का एग्जांपल आपको कोकोनट एंड पाम में देखने को मिलता है. डाइवर्जेंट पाल्मेट एंड कन्वर्जेंट वाला यू कैन इजीली सी इन ग्रास एंड वीट. Now let us try to understand the second type of leaf, that is reticulate venation. Reticulate में भी क्या है, जो मेन वेन्स हैं और वेनलेट है उनमें एक नेटवर्क लाइक अरेंजमेंट बनता है, कोई स्पेसिफिक फिक्स पैटर्न नहीं होता. ठीक है, रैंडमली वेन्स एंड वेनलेट ब्रांच फॉर्म में प्रेजेंट होती है थ्रू आउट द लीफ. फॉर एग्जाम्पल नाउ एज यू कैन सी एक लीफ है, लेट अस कंसिडर दिस इज अ लीफ. ये इसकी सेंटर की प्रिंसिपल वेन है और ये इसकी सेकेंडरी वेन्स अराइज हो रही है. ये जो सेकेंडरी वेन है इसमें आपकी ब्रांच फॉर्म में इरेगुलर पैटर्न में कुछ वेनलेट्स निकलती है, मतलब कोई भी ब्रांचिंग होगी और उसका कोई रैंडम पैटर्न होगा, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है. तो इस टाइप की वेनेशन को बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन. इसको हम फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, पिन्नेट एंड सेकेंड इज नोन एज पाल्मेट. पिन्नेट में क्या होगा, जैसे आपकी लीफ है, लीफ के पास एक सेंटर में प्रिंसिपल वेन होगी जो, और इसकी जो वेनलेट्स हैं, ठीक है, इसकी जो सेकेंडरी वेनलेट्स है उसमें आपके यहाँ पे क्या होगा, रैंडम वे में यहाँ पे ब्रांच फॉर्म में और यहाँ पे इसकी वेनलेट्स अराइज होंगी. तो एज यू कैन सी दिस इन मैंगो एंड पीपल. whereas in case of palmate leaf what you will see कि यहाँ पे एक से ज्यादा प्रिंसिपल वेन होंगी. लाइक कन्वर्जेंट, इसको अगेन लाइक हम इसको अगेन क्लासिफाई कर सकते हैं कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट. कन्वर्जेंट में आप क्या देखोगे, ये आपकी लीफ है, ठीक है, एक प्रिंसिपल वेन तो है ही बट इसमें बहुत सारी प्रिंसिपल वेन्स हैं. ठीक है, जबकि पिन्नेट में क्या होता है, सेंटर में देयर इज ओनली वन प्रिंसिपल वेन और उससे आपकी मिड वेनलेट्स निकल रही थी. यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारी जो ये जो पिटियोल का जो टिप है वहां से बहुत सारी आपकी प्रिंसिपल वेन्स अराइज होंगी और इन प्रिंसिपल वेन्स में फिर आपके रैंडम नेटवर्क से वेनलेट्स अराइज होंगे इन अ रैंडम वे. ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज कन्वर्जेंट पाल्मेट रेटिकुलेट वेनेशन.
as you can see this in case of China rose. Now in case of divergent what you could see कि जैसे पिट्योल का टिप है यहाँ से बहुत सारी मेन प्रिंसिपल वेन्स अराइज होंगी और इन प्रिंसिपल वेन्स के ऊपर आपके यहाँ पे फाइनर मिड वेन्स अरेंज होंगे इन अ रैंडम रेटिकुलेट नेटवर्क लाइक फैशन. ठीक है, दिस टाइप ऑफ लीफ इज नोन एज divergent palmate reticulate venation. So as it is written, there are many principal veins arising from the tip of the petiole to the upward. These are of two types, convergent and divergent. वो depend कर रहा है कि petiole से जो main principal veins arise हो रही है वो converge कर रही है, diverge कर रही है. इस केस में देखो ये यहाँ से petiole से different principal vein diverge कर रही हैं different leaflets में, whereas in convergent में सारी की सारी जो main principal ये एक point में tip of the leaf में आके converge कर रही है. So this is all about the venation, that is arrangement of vein and veinlets over the leaf, जिसको हम पैरल एंड रेटिकुलेट में क्लासिफाई करते हैं. पैरल में सारे जो वेन्स हैं या उनके वेनलेट हैं वो पैरेलल होंगे और रेटिकुलेट में वो एक नेटवर्क के फॉर्म में अरेंज होते हैं. पैरल वेनेशन को पिन्नेट एंड पाल्मेट में डिवाइड किया जाता है, रेटिकुलेट को भी पिन्नेट एंड पाल्मेट में, डिपेंडिंग अपॉन कि उनके पिट्योल के टिप से कितनी मेन प्रिंसिपल एक्सिस अराइज हो रही है. Now the next topic is, let us try to understand about the type of leaves. Leaves को basically हम दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं. One is known as simple leaf and second is known as compound leaf. सिंपल लीफ किसको बोलेंगे? ऐसी लीफ जिसका जो लैमिना है और लीफ बेस है वो पूरा का पूरा होता है और उसमें पार्टीशन नहीं होंगी. जैसे एज यू कैन सी इन दिस फर्स्ट लीफ, यहाँ पे ये जो पूरा लैमिना है इसका ये कंप्लीट है और इसमें रिजेस हैं, कट है, तो रिजेस के केवल मार्जिन में प्रेजेंट है, वो उसकी मिड रिब को टच नहीं कर रहे हैं. ठीक है, इस टाइप के लीफ को क्या बोल रहे हैं? सिंपल लीफ, जिसका लैमिला कंप्लीटली प्रेजेंट है और उसमें किसी भी टाइप का इंसाइशन और कट नहीं है. कट अगर प्रेजेंट है भी तो केवल मार्जिन तक है, वो मिड रिब को टच नहीं कर रहे हैं. ऐसी लीफ को हम बोलते हैं सिंपल लीफ. Whereas second type of leaf is known as compound leaf. Compound leaf में क्या होता है कि लीफ के अंदर एंसाइशन प्रोड्यूस हो जाते हैं, अब वो एंसाइशन मिड रिब को टच करते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे ये एक लीफ है, ठीक है, ये लीफ का मिड रिब है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ से कट प्रोड्यूस होने लगेंगे और ये कट क्या कर रहे हैं, आपके मिड रिब तक जा रहे हैं. तो इस टाइप से अगर आपकी एक मिड रिब में मल्टीपल लीव्स प्रोड्यूस हो रही है तो ऐसे लीफ को क्या बोलते हैं? कंपाउंड लीफ बोलते हो. कंपाउंड लीफ को अगेन आप फर्दर क्लासिफाई करते हो पिन्नेटली कंपाउंड लीफ एंड पाल्मेटली कंपाउंड लीफ. पिन्नेटली कंपाउंड लीफ में जो लीफलेट्स है वो एक कॉमन एक्सिस में प्रेजेंट होती है, जिसको हम यहाँ पे रैचेस बोलते हैं. जैसे यू कैन सी इन केस ऑफ नीम, लाइक इफ यू सी द डायग्राम नंबर 2 दैट आई एम मार्किंग, ये आपका क्या है, मेन स्टेम है और एक्सिस है, जिसको आप यहाँ पे एक्स रैचेस बोल रहे हो. इस रैचेस में यू कैन सी कि यहाँ पे लीव्स में क्या होगा, इंसाइशन हो गया, यहाँ पे कट प्रोड्यूस होने की वजह से एक ही स्टेम में आपके मल्टीपल लीव्स आ रहे हैं. ठीक है. सेकंड यू कैन सी इन केस ऑफ टैमरिंड में भी आप देखोगे, या नीम के केस में भी देखोगे, ये मेन रैचेस है, मेन एक्सिस है और यहाँ पर क्या हो रहा है, लीव छोटे छोटे पार्ट में उनका इंसाइशन हो रहा है रैचेस की तरफ और पिट्योल की तरफ. Whereas in case of palmately compound leaf, यहाँ पे क्या है, लीव्स एक कॉमन पॉइंट से अटैच रहते हैं. ठीक है, एट द टिप ऑफ द पिट्योल. फॉर एज यू कैन सी इन द डायग्राम, ये आपका पिट्योल का टिप है और सारी लीव इसी टिप से अटैच है. ठीक है, ऐसी लीव को क्या बोल रहे हो आप? पिन पाल्मेटली कंपाउंड. ये आपके हैंड का पाम की तरह रिजेम्बलेंस कर रहा है, दैट इज वाई इट इज ऑल्सो नोन एज पाल्मेटली कंपाउंड लीफ. यहाँ पर भी आपका क्या है, इंसाइशन प्रोड्यूस हो रहा है और वो इंसाइशन कहाँ पे आ रहा है, पिट्योल तक जाके आ रहा है. ठीक है, जैसे ये दिख रहा है ना, ये कट्स एंड ग्रूव्स यू कैन सी, ये ठीक है, ये लीव यहाँ पिट्योल तक जा रहा है कंप्लीटली कट कर, तो मतलब एक पिट्योल के टिप्स में आपके मल्टीपल लीव्स लगे हुए. ऐसे को अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? पाल्मेटली कंपाउंड लीव. तो सिंपल एंड कंपाउंड लीफ को हम क्लासिफाई करते हैं डिपेंडिंग अपॉन की लीफ का लेमिला एंटायर है या नहीं. अगर उसके अंदर इंसाइशन प्रोड्यूस हो रहे, कट प्रोड्यूस हो रहे हैं मिड रिब के तरफ या फिर पिट्योल की तरफ को, तो हम उसे कंपाउंड लीफ बोलते हैं. अगर कंप्लीट लेमिना प्रेजेंट है तो दैट इज नोन एज सिंपल लीफ. Now let us talk about the modifications of leaf. You could see, you must have seen different modifications of leaves around you. Like ये हुक्स बनाता है बिगोनिया में, स्पाइंस कांटों में मॉडिफाई हो जाता है, टेंडल्स में मॉडिफाई हो जाता है. टेंडल्स आर नथिंग बट अ कॉइल स्ट्रक्चर जो सपोर्टिंग का काम कर रहे हैं.
फिर आपके जो फ्लोरल लीव्स होते हैं मेन एक्चुअली जो फ्लावर की तरह भी रिजेम्बलेंस करते हैं। देन यू हैव फाइलोड लीव, किसी किसी केस में स्पेशली इन केस ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट लाइक नेपेंथिस, जो आपका लीफ है वो मॉडिफाई होता है एक पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर में जो कि ट्रैपिंग ऑफ द इंसेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लाइक इन एलोवेरा एंड अदर लीव्स में जो लीफ है वो स्टोरेज ऑफ फूड का काम करती है, ब्लैडर की तरह काम भी करती है। भी इंसेक्टिवोरस प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि वो ऐसे ग्रूव और कप शेप लाइक स्ट्रक्चर में मॉडिफाई होगी सो दैट इट कैन इनगल्फ द इंसेक्ट जो वहां पे आ रहा है और ट्रैप कर सके उस इंसेक्ट को। सो दीज आर डिफरेंट मॉडिफिकेशंस ऑफ लीफ। नाउ सी सम पिक्चर्स लाइक दिस फर्स्ट, दिस इज द केस ऑफ योर नेपेंथिस, जहाँ पे देखो लीफ किस कैसे मॉडिफाई हो रही है बैग लाइक और पाउच लाइक स्ट्रक्चर में फॉर द ट्रैपिंग ऑफ द इंसेक्ट। सेकेंड में यू कैन सी दीज टेंडल्स, ये जो लीव है ये लीव की जो मॉडिफिकेशन आपको टेंडल्स की फॉर्म में दिख रही है जो एज ए सपोर्टिंग ऑर्गन की तरह काम करता है। लाइक थर्ड में यू कैन सी एलोवेरा की लीव हाईली पल्पी एंड सक्लेंट होती है, रिच इन फूड वाटर। देन यू कुड सी फाइलोड ऑफ ऑस्ट्रेलियन अकेसिया। फाइलॉइड इज नथिंग बट द मॉडिफिकेशन ऑफ पिटियोल। कुछ प्लांट्स में यू विल सी कि जो पिटियोल है, ठीक है, वो एक ऐसे स्ट्रक्चर में मॉडिफाई हो जाता है कि वो खुद लीफ की तरह दिखता है और उस प्लांट की जो लीफ है वो बाद में झड़ जाती है, ठीक है। तो modification of the petiole into a leaf-like structure, that structure is known as phylloid. This you can see in Australian acacia. Then you can see bud present in the bryophyllum plant जहाँ से वो रिप्रोडक्शन के लिए भी यूज होता है। तो लीफ आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का लिए भी मॉडिफाइड हो सकती है। So this is all about the leaf. If you like my channel, please like, share and subscribe it. Thank you.